Welcome back to my channel Talk with Chalk. Friends, first of all, I want to bid my best wishes to the 20 of our students who have recently selected and posted and joined as junior clerk in Moyurbhanj district of Odisha government, and they had qualified in the OSSC exam, Odisha subordinate staff selection exam in 2021 and got posted in October 2021. That's why I want to bid them best wishes. Best wishes for your new jobs. Life will become more challenging, more competitive and more hectic. But I am sure you will win over every obstacles. Your ability has taken you to the new height of success. This new job is all because of your dedication, hard work and of course confidence too. So many congrats and stay blessed. So friends, today we are going to discuss the general knowledge paper of recently concluded Odisha High Court's ASO exams, preliminary test exams 2021, and this booklet series number is D. This does not mean that these questions are only meant for the High Court exams, but these are also the important questions for SSC CGL, SSC CHSL, Railways and TPC and Group D. Also these are important questions for the upcoming exams of Forest Guard, ARI, AMIN and Statistical Surveyor exams. So don't skip this video, watch till the end. So let's get going with this video to get started. So the first question is like this: the most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is establishment of what? That means कौन सी strategy हम अपनाएंगे so that we can conserve the biodiversity. It is the biosphere reserve. जितना हम biosphere reserve establish करेंगे उतना उसको सेफ रख पाएंगे, इसलिए आंसर होगा A. Then second question: which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of use of ozone depletion substances? And the options are Basel Convention, Montreal Protocol, Kyoto Protocol and Nagoya Protocol. What are these? I have given this in the below. Basel Treaty was meant for banking regulation and Basel is in Switzerland. Okay. Basel is a place in Switzerland and Basel Treaty means an agreement was held in Basel and it was meant for the banking regulations. ठीक है, इसके बारे में हम बाद में इसको समझेंगे. Then Kyoto Protocol. Where is Kyoto? Kyoto is also in Japan and there was also a treaty and it was on climate change. Climate change के ऊपर ये agreement हुआ था. Then Nagoya Protocol. Nagoya is also in Japan and it is a city of Japan, and here the agreement was regarding the access to genetic resources and their fair and equitable sharing of benefits on biological diversity. You can say Nagoya Protocol was also on biological diversity. Answer of 42 is Montreal Protocol. So 43 is like this: CORPET. The abbreviation of CORPET is Coordinated Patrol, and patrol means PATROL, not PETROL. Patrol and patrol are homonyms. So one of the spelling is PE and another is PATROL. This patrol means oil and this means movement or mobile. Then CORPET exercise is held biannually. Biannually means साल में 2 बार. Between India and which country? It is between India and Indonesia. And from the Indian side, INS Soryu participated there. INS means Indian naval ship. And from the Indonesian side, the ship was Kri Bang Tomo. So these two ships took part in the military exercise. And in July, and it was the 36th edition exercise, and since 2002 ये 2002 साल से चला आ रहा है, annually 2 times,
It is a biannual exercise. So the next question is 44. Who has won the prestigious International Booker Prize 2021 for the book At Night All Blood is Black? So All Blood is Black got the prestigious International Booker Prize. So Booker Prize, regarding Booker Prize, who has given this year's Booker Prize? It is David Diop. And what should we know regarding the Man Booker Prize? And the name was Man Booker Prize till 2019. ये 2019 तक इसे मैन बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता था और 2019 से ये सिर्फ इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता है। क्यों? 2019 तक मैन नाम का एक कंपनी ये इसको स्पॉन्सर कर रहा था। ये एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंपनी था जो कि इसको स्पॉन्सर कर रहा था। अभी लेकिन क्रैंकस्टार्ट नाम का कंपनी इसको अभी स्पॉन्सर कर रहा है, इसीलिए इसका नाम भी चेंज हो गया और इसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज। और ये 2019 से ये नाम चेंज किया गया है। 1969 से 2019 तक ये मैन ग्रुप्स द्वारा चलाया जा रहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46. What is the name of the app launched by the Ayush Ministry for the International Yoga Day 2021? It is Namaste Yoga. Namaste Yoga is the app of Ayush Ministry. Then question number 46 is like this. Which of the following contributes to the process of denudation? Denudation means what? So what is denudation? Denudation means loss of soil or movement of soil from the upper part of the land to the lower part of the land. It is called denudation and it is for weathering. What is weathering? Weathering means breaking down of rock or cracking down of rock. छोटा छोटा बन जाता है पत्थर, इसको हम वेदरिंग ऑफ रॉक कहते हैं। और छोटा छोटा बनने के बाद इसे ग्रावेल्स कहते हैं। ग्रावेल्स के बाद ये चिप्स जैसा बनता है, इसके बाद सैंड बनता है, सैंड के बाद मिट्टी बनता है। तो वेदरिंग ऑफ रॉक से मिट्टी बना है, ठीक है। देन द 47, द अरेंजमेंट ऑफ द मिनरल्स इन मेटामॉर्फिक रॉक इन लेयर और लाइन्स व्हाइल अंडरगोइंग recrystallization due to the deformation caused by the tectonic shearing is referred to as what? Three types of rocks are there. One is igneous. Another one is sedimentary. ठीक है। Another one is metamorphic. इग्नियस मीन्स जो लाभा से निकलते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट से लाभा होकर के निकलते हैं, इसको इग्नियस रेक कहते हैं। इसको हिंदी में आग्नेय शिला कहते हैं। अग्नि से जो निकलता है मतलब आग से, लाभा से। देन सेडिमेंटरी मीन्स ये सेडिमेंट मतलब लेयर होके निकलता है। ये नीचे वाला ये हाई प्रेशर होने के बाद ये रॉक बन जाता है एक पीस, इसको सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं। और इन दोनों का जो बीच का है इसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। मतलब इसका भी कुछ कैरेक्टर होगा और इसका भी कुछ कैरेक्टर होगा, इसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो इसी मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है मिनरल्स का लेयर और लाइन्स व्हाइल अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शेयरिंग। टेक्टोनिक शेयरिंग मीन्स ये जो मिनरल्स का अरेंजमेंट है मेटामॉर्फिक रॉक में, इन लेयर में, इसकी लेयर में और लाइन्स में, जब व्हाइल अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन, जब वो क्रिस्टल बनता है, इसलिए बनता है ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ठीक है। डिफॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन के ऑपोजिट, कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शेयरिंग। टेक्टोनिक शेयरिंग मीन्स जैसे टेक्टोनिक शेयरिंग मीन्स दो लेयर की शेयरिंग के वजह से, ये एक लेयर है अर्थ क्रस्ट में, ये एक लेयर है
इनका जब शेयरिंग होता है ये इधर चला जाता है, ये इधर आ जाता है, ठीक है, इसको टेक्टोनिक शेयरिंग कहते हैं। तो रेफर टू एज व्हाट, इसको क्या कहते हैं, ये फोलिएशन होता है। हियर आई हैव गिवन यू व्हाट इज फोलिएशन, व्हाट इज एक्सफोलिएशन, व्हाट इज लिथिफिकेशन, व्हाट इज मिनरलाइजेशन। सो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। फोलिएशन मीन्स क्या है, जो पैरेलल अरेंजमेंट होता है मिनरल ग्रेन्स का, ठीक है, पैरेलली ये ग्रेन्स पैरेलल ही होके ये ग्रेन रहते हैं और प्रेशर होने के बाद ये रॉक बन जाते हैं। छोटा सा प्रेशर हुआ, यहाँ पे प्रेशर आया, यहाँ से प्रेशर आया, तो ये रॉक बन गया, इसी को हम फोलिएटेड कहते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन एक तरह की स्किन को, जैसे हमारा स्किन, ठीक है, डेड स्किन जो है इसको हम रिमूव कर देंगे आउटर लेयर से, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सफोलिएशन। तो रिमूवल ऑफ डेड स्किन फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो इट कैन नॉट बी द ऑप्शन हियर। देन द लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन, लिथो मीन्स पत्थर, रॉक, तो पत्थर बनना, इसी को लिथिफिकेशन कहते हैं। व्हाट इज लिथिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड रॉक फ्रॉम द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। जो अनकंसोलिडेटेड हो करके जो सेडिमेंट्स जो क्या रहते हैं, सेडिमेंट्स रहता है, और इसको प्रेशर होने के बाद ये रॉक बनता है, इसको क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन। देन मिनरलाइजेशन। व्हाट इज मिनरलाइजेशन, इट इज ट्रांसफॉर्म ए मेटल इनटू ओर। अगर हम एक आयरन नेल, सपोज ये एक आयरन नेल है, इसको हम अभी मिट्टी में डाल देंगे तो ये क्या होगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। Fe आयरन का जो केमिकल कंपाउंड का नाम है, केमिकल नेम है फेरियम। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर Fe2O3 ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। और बहुत से कंपाउंड होने के बाद ये एक मिट्टी में मिलके ये पत्थर जैसा बन जाएगा, और इसको हम ओर कहते हैं, ORE, और जिससे फिर से मेटल निकलेगा। नेक्स्ट 8, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड येलो लाइट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, विब गियर आपको पता होगा, विब गियर, ठीक है, ये क्या है, ये वेवलेंथ के हिसाब से इसको सजाया गया है। वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का, 1 नंबर में ये है, इसीलिए हमको रेड कलर ज्यादा जल्दी दिखाई पड़ता है। O मतलब ऑरेंज, Y मतलब येलो, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू, I मीन्स इंडिगो, V मीन्स वायलेट। तो ये जो सजाया गया है विब गियर, इस विब गियर वेवलेंथ की हिसाब से, ठीक है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखा गया है। तो एनर्जी किसमें कितना है इसी से पता चलेगा, इसलिए मैंने आपको ये लिखा। तो रेड का अगर ज़्यादा वेवलेंथ है तो एनर्जी इसका कम होगा, ठीक है। रेड का क्या ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, इसीलिए इसका एनर्जी सबसे कम होगा, और वायलेट का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। इसी हिसाब से अगर हम इसको सजाएंगे, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, फिर आंसर होगा ब्लू। तो आंसर क्या होगा, ब्लू कलर में। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगा, इसी में होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, इसमें होगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। इसी तरह से इसको सजाएंगे तो ये निकलेगा क्या, ब्लू कलर, ठीक है। देन मोस्ट रिएक्टिव एमंग द हेलोजेंस। हेलोजन मीन्स क्या है, व्हाट इज हेलोजन। हेलोजन मीन्स सॉल्ट मेकर। जो थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसके बाद इसको समझाएंगे, ठीक है। व्हाट इज हेलोजन ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। हेलोजन मीन्स सॉल्ट मेकर, जो अल्कालाइन के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एसिड है। सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, ये जब मिल जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि एक सॉल्ट है। तो जो सॉल्ट बनाते हैं इसको कहते हैं हेलोजन ग्रुप।
जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन एंड टेनिसाइन। ये 6 एलिमेंट्स हैं हैलोजन ग्रुप में। ये ग्रुप का कैसे आया? ये पीरियोडिक टेबल से आया, आपको पता होगा। देन सो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग दीज इज फ्लोरीन। तो ये सबसे पहले ये रिएक्ट करता है। देन हार्मोन इंसुलिन इज व्हाट? ये क्या चीज है? ये एक पेप्टाइड है, ठीक है, ये एक पेप्टाइड है। Statutory grants are given to state by the center on the recommendation of which of the following institution? It is given by the finance ministry. Statutory grants, जो grants आता है स्टेट को सेंटर से, इसे कौन देते हैं? Then human development report is published by which of the following organization? कौन ये करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? ये एक रिपोर्ट है जो कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये देता है। डेवलपमेंट रिपोर्ट कैसे बनता है? जैसे कि कौन सी कंट्री में लोगों के बीच में, ठीक है, उनका लाइवलीहुड उनको मिलता है कि नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, कितने पक्के का घर है, हाउसेस टाइप्स, उनको एजुकेशन मिलता है कि नहीं, ये सब पैरामीटर्स हैं। ये पैरामीटर देख के इसको ह्यूमन डेवलपमेंट ये सब पैरामीटर पहले देखा जाता है। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि इस कंट्री में इतने आदमी के पास लेटरिन है, खाने के लिए, मतलब वो दे आर गेटिंग देयर लाइवलीहुड्स, दे आर गेटिंग एजुकेशन, दे हैव द पक्का हाउसेस, they have the good drainage system, etc. and etc. So from these parameters this development report is being published, and it is published by the United Nations Development Program. Then what is a closed economy? Closed economy क्या है? Closed economy means जो country, suppose this is a country, ये export नहीं कर रहा है, या ना तो एक्सपोर्ट कर रहा है ना तो इंपोर्ट कर रहा है, मतलब कुछ नहीं ला रहा है और ना तो कुछ बेच रहा है। इसी इकोनॉमी को, यहाँ पे जो अर्थनीति चलता है, इसी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पर एक्सपोर्ट भी नहीं होता है, इंपोर्ट भी नहीं होता है। इसी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स का एक मतलब ये टर्म है। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए आप जो भी अमीन एग्जाम, आरआई, एआरआई, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम और स्टैटिस्टिकल सर्वेयर एग्जाम, ये सब अपकमिंग एग्जाम उड़ीसा गवर्नमेंट का देने जा रहे हैं। ये सब चीज़ों को ठीक से ध्यान से देखिएगा। दोज हु आर द एस्पिरेंट ऑफ एआरआई एग्जाम, अमीन एग्जाम एंड स्टैटिस्टिकल सर्वेयर एग्जाम, exercise constable exam and forest guard exams must give attention to the type of questions, not the in the context of Indian economy. Open market operation refers to what? Open market operation means what? Open market operation means it is a market in which RBI controls the money flow to the market. अगर ज़्यादा पैसे हो जाएंगे मार्केट में तो आदमी क्या करेगा, उसको खा के ख़त्म कर देगा चीज़ों को। इसीलिए जब बैंक में ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, इसीलिए बैंक में जब ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तब आरबीआई क्या करता है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के वो पैसे वापस ले लेता है। और जब कमी हो जाता है तो वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनमें से खरीद लेता है और पैसे बैंक को दे देता है। इससे क्या होता है, मार्केट में करेंसी का कंट्रोल रहता है। मार्केट में अगर करेंसी का कंट्रोल नहीं रहेगा तो इकोनॉमी बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा मतलब क्या है, ज़्यादा पैसे बैंक में होगा तो बैंक क्या करेगा, इसको लोन दे देगा, जो जिसको नहीं चाहिए वो भी ले लेगा और वो फिर रिपेमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए मनी फ्लो को बैलेंस करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन नाम का एक वर्चुअल मार्केट प्लेस रखा गया है। यू कैन से इट इज ए वर्चुअल मार्केट प्लेस वेयर
government securities are purchased and sold. Then the priority sector lending. What is priority sector lending? ये उसी सेक्टर को कहते हैं जो जिसमें प्रायोरिटी देना है गवर्नमेंट को, जिस सेक्टर में गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देना है उसी सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं। और गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है कि प्रायोरिटी सेक्टर को सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोन प्रोवाइड करना होगा। अगर वो बैंक इतना परसेंटेज सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोन प्रोवाइड नहीं करेगा तो फिर उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और ये सेक्टर्स कौन कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक प्रायोरिटी सेक्टर है जिसमें प्राथमिकता देना होगा। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस ये भी एक प्रायोरिटी सेक्टर है, मतलब इसमें भी प्राथमिकता देना होगा। बहुत से एंटरप्राइजेस छोटा छोटा कॉटेज इंडस्ट्री जैसा बनने से ही लोगों को लाइवलीहुड मिल सकेगा, इसीलिए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। देन वीकर सेक्शंस को भी लोन देना होगा। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर्स का दर्जा दिया है, स्टेटस दिया है। तो ये सब यहाँ पे जब आंसर क्या होगा? डी। Then which article of the Constitution of India safeguard one's right to privacy? राइट टू प्राइवेसी जिसमें लिखा गया है उस आर्टिकल का नंबर कितना है, ये हमको पूछा गया है। ये है आर्टिकल 21। देन द क्वेश्चन में अराइज, देन व्हाट आर दीज आर्टिकल्स? आर्टिकल 19 सेज रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमको फ्रीडम दिया गया है। आर्टिकल 21 मैंने आपको बताया, प्राइवेसी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तीनों हैं आर्टिकल 21 में। देन आर्टिकल 25, व्हाट इज आर्टिकल 25? इट सेज रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम जो भी रिलीजन लेना चाहें ले सकते हैं। देन आर्टिकल 29 इज रिगार्डिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, हम जो पढ़ना चाहें। 57 इज लाइक दिस, Which of the following committee of the Constituent Assembly were headed by सरदार पटेल? जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब बहुत से कमिटी बनाए गए थे, तो इसी कमिटियों में सरदार पटेल किस कमिटी का हेड थे? ये कौन सा थे? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी में ये थे, इसका हेड थे। प्रोविंशियल 4 कमिटी में ये हेड थे, उसी 4 में से ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी। देन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफपल्ली वाज ए मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन व्हिच मूवमेंट? कौन सी मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट में ये अंडरग्राउंड होकर के एक्टिविटीज चला रही थी? ये है भारत क्विट इंडिया मूवमेंट में ये अंडरग्राउंड होकर करके ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे। देन 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 इज लाइक दिस, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लास्ट इन रेस्पॉन्स टू व्हाट? क्विट इंडिया मूवमेंट कौन सी प्लान के बाद, कौन सी प्रपोजल के बाद, या फिर कौन सी कमीशन या रिपोर्ट के बाद ये क्विट इंडिया मूवमेंट या ये जो मूवमेंट था ये कौन सी प्लान के बाद चलाया गया था? ये क्रिप्स प्रपोजल के बाद। क्रिप्स प्रपोजल जो हमको पसंद नहीं आया तो इसके बाद इसको विरोध करते हुए हमने क्विट इंडिया मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चलाया था। तो आई want to say something about the other plans. Cabinet, what is cabinet mission plan, what is Cripps proposal, what is Simon commission, and what is Wavell plan. So cabinet mission plan was related to transfer of power from British government to Indian leadership. It was in 1946. कैबिनेट मिशन प्लान क्या लेके आया था? ये पावर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन को देने के लिए ये मिशन आया था। देन क्रिप्स प्रपोजल, व्हाट बी में क्या है? क्रिप्स प्रपोजल इन 1942, इसमें क्या लेके आए थे क्रिप्स?
स्टैटफोर्ड क्रिप्स ने ये प्रपोजल लाया था, इसीलिए इसको क्रिप्स प्रपोजल के नाम से जाना जाता है। सो इसमें क्या है, टू कीप इंडिया लॉयल टू ब्रिटिश वार रिपोर्ट इन एक्सचेंज फॉर ए प्रॉमिस ऑफ इलेक्शन एंड फुल सेल्फ गवर्नमेंट वंस द वार वाज ओवर। इसमें ये शर्त रखे ब्रिटिश ने कि अगर आप हमको वर्ल्ड वार में हमारे साथ लॉयल रहे, हमारे साथ युद्ध में आप लोग गए, तो हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट करा देंगे, मतलब आप चलाएंगे गवर्नमेंट को और इलेक्शन भी होगा, इसमें इलेक्शन की इजाज़त भी होगा। लेकिन गांधी जी ने ये नहीं माना, ये बोला गया कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब आपने ये पहले से करना चाहिए था, आपने लेट में लेके आए, अभी आपको जाने की बारी आ रही है तो हमको लालच दे रहे हैं आप, ये कह करके ये रिजेक्ट कर दिया। देन इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू किया गया। देन साइमन कमीशन क्या है, ये 1928 में आया था। ये 7 मेंबर ब्रिटिशर ग्रुप था और इसमें किसी इंडियन को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये किसके बारे में था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिफॉर्म होगा इंडिया में, उसी के बारे में आया था साइमन कमीशन। लेकिन इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें कोई भी 7 मेंबर ग्रुप में कोई भी इंडियन नहीं था। तो इन्होंने बोला कि आप तो इंडियन नहीं है, आप कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करेंगे, हमको भी रखिए, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। देन वावेल प्लान क्या था, 1945 में आया। कंप्लीट इंडियनाइजेशन ऑफ द पावर अकॉर्डिंग टू द कास्ट एंड रिलीजन। इसमें 1945 में ये तोड़ने की कोशिश किया गया वावेल प्लान में। वावेल प्लान इस तरह से लेके आए वो 1945 में, जैसे इनको पता चल गया कि इंडिया अभी फ्रीडम पाने वाली है बहुत जल्द, तो इन्होंने क्या किया ना, ये अकॉर्डिंग टू दी ये रिप्रेजेंटेशन रखा, जैसे हिंदुओं के लिए इतना सीट रहेगा, मुस्लिम के लिए इतना रहेगा, सिख के लिए इतना रहेगा, ये कास्ट के लिए इतना रहेगा, एससी के लिए इतना रहेगा, ये भाग करने की, ठीक है, स्प्लिट करने के लिए कास्ट और रिलीजन के हिसाब से सीट की रिप्रेजेंटेशन को इसमें बढ़ावा दिया गया था। तो ये था डिफरेंट प्लान्स के बारे में, ये आपको ठीक से पढ़िए, ठीक है। ये इसीलिए मैंने दिया कि ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन या फिर क्रिप्स प्रपोजल और साइमन कमीशन और वावेल प्लान, ये सब बहुत ही आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ द सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज क्या हुआ था 1929 में, क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये किस लिए था, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1929 में अपना गोल, लक्ष्य ये रखा कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट करना है, पूर्ण स्वराज हमको पाना है, ये लक्ष्य रखा गया था। इसीलिए 1929 इम्पोर्टेंट है। ओडिशा गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड व्हिच स्कीम फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन आउटकम इन 125 हार्ड टू रीच ब्लॉक्स ऑफ 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। ठीक है, कौन सा स्कीम था न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, ये था सोपान। सोपान का एब्रिविएशन मैंने यहाँ पे दिया है, स्ट्रेटेजी फॉर ओडिशा पाथवे टू एक्सीलरेटेड न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रेन, नर्सिंग वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स। इन लोगों के लिए ये बनाया गया था। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन won by India at the Tokyo Paralympic 2021? It is 19 medals and 5 gold, 8 silver, 6 bronze. Then Indian para-athlete Krishna Nagar has won the gold medal in which event of the 2020 Paralympic? ये बैडमिंटन में ये गोल्ड मेडल लाए हैं। तो इसको यहाँ पे 2021 लिखा गया है, इसमें 2020 लिखा गया है।
तो ये दोनों अभी लिखा जा रहा है क्योंकि ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के वजह से ये 2021 में हुआ, इसीलिए इसको 2021 भी कहते हैं और 2020 पैरालंपिक भी कहते हैं। देन दस्तलिक इज द नेम ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ये किया जाता है, गेस्ट कंट्री को बुला के ये एक्सरसाइज किया जाता है। Then which of the following are the geographical indication tag of Odisha? Geographical indication हाल ही में रसगुल्ला को मिला है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओडिशा रसगुल्ला को मिला है, पहले से ओडिशा पट्टचित्र भी है और कंधमाल हल्दी भी है। तो इसमें so then question number 66, high temperature and low pressure over the Indian subcontinent during the summer season draw air from the Indian Ocean leading to the inblowing of the it is southwest monsoon। ठीक है, ये है peninsular India and it is wind blows from this side, it is called southwest monsoon and it is in first week में, जून की फर्स्ट वीक में ये यहाँ पे पहुँचती है केरला में। सो दिस इज ऑल टोल्ड अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून इन क्वेश्चन नंबर 66। देन क्वेश्चन नंबर 67, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द टर्म डीनोटिफाइड ट्राइब्स रेफर्स टू व्हाट? डीनोटिफाइड ट्राइब्स किसे कहते हैं? द ट्राइब्स व्हिच वी आर अर्लियर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स, जैसे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोधा। ठीक है, इस तरह से जो ट्राइब्स होते हैं इनको डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व? अगस्त्यमलय, देन नीलगिरी एंड पंचमढ़ी, ऑल ऑफ दीज आर बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेप्ट नोलोमला, इट इज बर्ड सेंचुरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which of the following hills are found where the Eastern Ghat and Western Ghat meet? It is Nilgiri hill. This is Western Ghat and this is Eastern Ghat and the Nilgiri hill is here. So it connects the Eastern Ghat and Western Ghat mountain ranges. Then what is common in the three cities of Pittsburgh, Jamshedpur and Sheffield? All of these three cities have steel industry and iron industries. So it is common among them. Then which of the following act laid the foundation of central administration? भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मूल कौन सा एक्ट था? किस एक्ट के आधार पर ये अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 72, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट्स द पावर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इस हिसाब से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से किसका पावर को कम किया गया? पार्लियामेंट का पावर। देन इन व्हिच ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल? कौन सी केस के अनुसार? ये आईआर कोयलहो केस के अनुसार, आईआर कोयलहो केस के अनुसार ये किया गया है। 74 में क्या दिया गया है? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स प्रोविजन बोरोड फ्रॉम। कौन कौन सा प्रोविजन को कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त लाया गया है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लाया गया है? देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ से लाया गया? आयरलैंड से, इसलिए ये गलत है। देन द आइडिया ऑफ रेसिडुअरी पावर ये कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा होगा? यही करेक्ट होगा, मतलब 1A।
तो ये कहाँ कहाँ से बोरोड किया गया है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लाया गया, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। सो 75 इज लाइक दिस, इन व्हिच ऑफ दिस स्टेट्स ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, मतलब कहाँ से करना ही है, नहीं करने से नहीं होगा, मतलब ट्राइबल मिनिस्टर रहना जरूरी है। कौन कौन सी स्टेट में, तो 76 में क्या दिया गया, Who among the following rejected the title knighthood and refused to accept a position in the Council of Secretary of State for India? किसने नाइटहुड का टाइटल रिजेक्ट किया था, मतलब लेने के लिए मना कर दिए थे, और रिफ्यूज टू ये भी मना किए थे, तो क्या मना किए थे, पोजीशन लेने के लिए काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में। ठीक है, ये गोपाल कृष्णा गोखले ये रिफ्यूज किए थे। तो नाइटहुड का मतलब क्या है, किसी को अगर नाइटहुड का उपाधि मतलब टाइटल मिलती है तो ये अपने नाम के आगे सार लिख सकता है, जैसे सार राकेश कुमार, ठीक है, और फिर सार राजकुमार, ये सब लिख सकता है, अपने नाम के आगे सार लिख सकता है। जैसे हम श्री लिखते हैं वो सार लिखेंगे। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग revolt was made famous बंकिम चंद्र चटर्जी in his novel आनंद मठ। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी रिवेलियन को या फिर रिवोल्ट को, विद्रोह को फेमस बनाया था, सन्यासी रिवेलियन को इन्होंने आनंद मठ के द्वारा ये फेमस बनाए थे। आनंद मठ उनका किताब नोवेल था। देन 78 पे चलते हैं। At which Congress session was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience? कांग्रेस का कौन सी सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सी सेशन में वर्किंग कमेटी में ये ऑथराइज किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने के लिए, आईन अमान्य, डिसोबीडियंस मतलब ना मानना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा है, यह है 1930 का दांडी मार्च। ठीक है, इसी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। देन व्हिच ऑफ द अशोकाज एडिक्ट मेंशन्स अबाउट द विक्ट्री ओवर कलिंगा, कलिंगो वार हुआ था, इसका प्रूफ हमको कहाँ पे मिलेगी, मेजर रॉक एडिक्ट 13, मेजर रॉक एडिक्ट 13 में ये लिखा गया है कि अशोका ने कलिंग पर विक्टोरी प्राप्त किए थे, विजय प्राप्त किए थे। मेजर और माइनर दो तरह की रॉक एडिक्ट होते हैं। रॉक एडिक्ट मतलब पत्थर के ऊपर जो लिखते थे, इसी को रॉक एडिक्ट कहते हैं, जैसे धौली में है। देन हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट, इट वाज वीरकिशोर रॉय। वीरकिशोर रॉय वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन ओडिशा। तो ये था हाईकोर्ट एसओ एग्जाम का क्वेश्चन, इसको मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है और कोशिश की है समझाने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज ए यूजफुल वीडियो टू यू। इफ यू फील इट यूजफुल, then don't forget to give a like, subscribe and share my channel. So friends, I need to head out now. It was a great connecting with you all. See you, have a good one, and thank you for watching.